So, good morning to all of you, dear students. Now, today we are going to be start a new unit. That you name of that unit is torsion in shaft. And as you all know that the torsion is subjected to when you are applying a force on the circumference of any object, and that force in term of that you can say that it in term of twisting moment. So this phenomena is called torsion, and as basically it is subject. This phenomena is basically this is important to for a shaft, and you all might be know that what is the shaft. Shaft it is a one circular object which is capable to transmit the power or torque. कोई भी वैसी चीज जो ग्राउंड दिखती है वो सब सॉफ्ट नहीं होती. सॉफ्ट वही कहलाएगी विच इज एबल टू ट्रांसमिट विच कैन ट्रांसमिट द लो टॉर्क और पावर. सो ये चीज आपको बस याद रखना. देन ओनली दैट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए सॉफ्ट. Soft may be solid soft, may be hollow soft, it doesn't matter, but it must be. Their working is like that, it must be able to transmit the torque. ठीक है. सो वो सॉफ्ट कहलाता है. ठीक है. अगर कोई भी राउंड चीज है उसमें से वाटर फ्लो कहलाएगा तो वो कहलाएगा पाइप. वो सॉफ्ट सॉफ्ट नहीं कहलाएगा. उसकी डिफिनीशन डिपेंड ऑन उसके वर्क से होता है, ना कि उसके स्ट्रक्चर, ना उसके व्यू से. ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा. चलिए, बहरहाल वी आर नाउ टॉकिंग अबाउट द शाफ्ट एंड टॉर्सन इन द शाफ्ट. You are understood what is the torsion and what is the shaft. Now let's move to derive the equation of torsion, your torsion equation. So torsion equation is very important in this unit. So before going to be derive the equation of torsion, we have to be take some assumptions. And in the torsion equation, we have some parameters, some elements of that. These elements are shear stress, angular twist, length of the shaft. All are these are their parameter of that shaft. So these are the important parameter. Now the before going to be solving or getting the derivation on torsion equation, we have to be take some considerations, some assumptions. So first assumption is the material is homogeneous and isotropic, and you all know the what is the meaning of that. And shaft is not initially distorted. It means the which shaft you are considering for the analysis, it must be straight. There is no pre-distortion. Then third one is the displacement of a point in a shaft. It is proportional to the distance from the center of the shaft, and that is the shear strain at any point. Shear strain at any point in a shaft to its distance from the center of the shaft. So it means that point at this, the displacement of that particular point what you are considering, on that point what the shear stress acting, it is depend on the distance from the center of the shaft. Let's later on we will better understood, and I'm showing you a diagram, then we will better understood. Let's come to the next point, the forward. The cross section perpendicular to the axis of the shaft are plane before shaft is subjected to the twisting. Twisting moment, whatever you are going to be twist अप्लाई करने से पहले द क्रॉस सेक्शन ऑफ द शाफ्ट क्या होता है. क्रॉस सेक्शन ऑफ द शाफ्ट थोड़ा चलो आप देख लो. ये है क्रॉस सेक्शन ऑफ द शाफ्ट. दिस वन इस मस्ट बी लाइक अ प्लेन. ये एक प्लेन है और ये प्लेन मस्ट बी द परपेंडिकुलर ऑफ दिस एक्सिस ऑफ द शाफ्ट. दैट मीनिंग ऑफ दैट. इसका मतलब यही है. ठीक है. अब आगे चलते हैं. The angular twist is uniformly distributed along the length of side. ये है बेटा angular twist. This phi, this is uniform. You can see that it is gradually increasing at in this way, and the
एंगल बिटवीन टू इज यूनिफॉर्म, एक ही है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड फाई. शेयर स्ट्रेस डेवलप इन द शाफ्ट इज विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट, दैट इज शेयर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू शेयर स्ट्रेन. ये तो दैट इज सिंपल डेफिनेशन ऑफ द शेयर स्ट्रेस. ओके, मीन्स इट्स ओबेइंग द हुक्स लॉ, ये तो वहीं से लिया हुआ है. देन आप ट्राई टू बी अंडरस्टैंड दिस डायग्राम. Initially dear student, we have a shaft. When this point is called A, look, this is A and this is A dash. So initially this A and A dash both are coincide. So means this line, extra line, this is a lie with this one. Before applying this twisting moment, this T. So dear student, when you applied this twisting moment T on one end and another end is opposite direction of twisting moment is takes place, अपने आप ही वो एक्ट करेगा जिसका डायरेक्शन अपोजिट होगा. ये चीज आपको समझ में आने आई होगी. आप कोई भी ग्राउंड चीज ले लो अगर, तो इसको ये मान लो गए तो मैं इधर लगाऊंगा तो इस डायरेक्शन में अपोजिट में इसको ऐसे पकड़ना पड़ेगा. तो उसको रोकने के लिए भी हैव टू बी अप्लाई द ट्विस्टिंग मूवमेंट इन, इट इज ऑटोमेटिकली स्टार्ट एक्टिंग ओवर देयर एट ट्विस्टिंग मूवमेंट इन डायरेक्शन अपोजिट टू अप्लाइड ट्विस्टिंग मूवमेंट जो अप्लाई किया हुआ. चलिए, तो ये तो बात हो गई डियर स्टूडेंट. ये देखो यहाँ पर एंगल बन गया आपका फाई अलोंग दी लेंथ. ये पहले वाली फिलामेंट है, ये वाला ए, ठीक है, और ये ए डैश नया वाला. नया मतलब वही शिफ्ट हुआ है जब आपने टॉर्क लगा दिया. तो ये चीज आपको इधर भी दिखेगा. किधर? इसके क्रॉस सेक्शनल साइड. तो पहली पोजीशन थी ए, दूसरी ए डैश, तो यहाँ पर भी एक एंगल बनेगा and that angle is called theta, and the radius of shaft is capital R is given, length of the shaft capital L is given, and this is the angle theta in cross sectional side. These filaments are coincide before applying a twisting moment, and when it is applied, it is shift a shift toward a dash. So this angle is come in existence. So dear student, अब क्या कर रहे हैं हम, ये वाला जो स्लाइस है, ये जो प्यारा सा पीस है ए डैश और ओ वाला, ये वाला जो पार्ट है, ये यहाँ उठाया, ये रख लिया नीचे, उस स्लाइस को उठाया और यहाँ रख लिया. अब हमने क्या किया, जो टॉप मोस्ट पॉइंट पे ए डैश है, तो मान लिया कि बीच में भी एक पॉइंट है बी था और वो बी डैश पोजीशन पे पहुंच गया. तो उनके बीच में दो उस फिलामेंट के बीच में एक एंगल बनेगा और दैट एंगल इज कॉल्ड फाई आर. उसको मैंने फाई आर मान लिया और इस ऊपर वाले को फाई मान लिया क्योंकि वो मैक्सिमम आउटर फिलामेंट पे है. इनर किसी फिलामेंट में वो दैट इज फाई आर. तो ये चीज तो समझ में आ गई होगी. और यहाँ मैंने माना ओ ए मतलब दिस रेडियस ऑफ दिस शाफ्ट एंड ओ बी जो हमने इंटरमीडिएट पॉइंट लिया है उसकी रेडियस स्मॉल आर. ये चीज आपको समझ में आ गई. आगे इसका यूज होगा. देन इसको थोड़ा समझो. ये जो फाई है ना, आप देखो मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा. चलिए, ये यू आर द फैमिलियर विद दिस. अब वो स्ट्रेट लाइन है, तुमको तो स्ट्रेट ही समझना है, मेरे से स्ट्रेट नहीं हो रही था, तो इससे आप फैमिलियर हो. फिक्स कर दिया और इधर से इसमें लगाया एक फोर्स. तो नाउ इट्स कम हियर एंड ये वाला यहाँ आ गया. दिस एंगल इज कॉल्ड द फाई, ठीक है, और इसको मान लिया सी सी डैश. तो हमने पहले से पढ़ा है कि अगर ऐसी कंडीशन आएगी इस पार्ट में तो क्या होगा, ये सी से सी डैश. तो ये जो एंगल फाई है इसको हम बोलते थे शेयर स्ट्रेन. ये tan थीटा बहुत छोटा होता है, tan फाई बहुत छोटा होगा, तो डायरेक्टली वी आर स्टार्टेड से दैट द फाई इज कॉल्ड द शेयर स्ट्रेन. तो यहाँ पर भी क्या हो जाता था, सी से सी डैश जो ये ट्रेवल किया यहाँ से यहाँ तक, वो अपॉन दिस
ऊंचाई इसकी जो h है या जो भी है, तो ये h हो गया है। तो यहाँ से हम डिफाइन करते थे फाई इजकल टू सी सी डैश अपॉन एच। सिमिलरली यहाँ आप करोगे ये एच ये गया यहाँ से यहाँ तक ए से ए डैश, और यहाँ से ये जो डिस्टेंस है मतलब लेंथ ऑफ द शाफ्ट उससे आप डिवाइड करोगे तो यू विल गेट दिस फाई। और यहाँ वाले अंदर वाले में करोगे तो फाई आर आप बी बी डैश अपॉन स्मॉल आर, बी बी डैश अपॉन इस कैपिटल इसका लेंथ ऑफ दिस शाफ्ट यू विल गेट दिस फाई आर। तो दिस इज द सेम पैटर्न जो हमने पहले से ही पता है हमको, जो हमने पहले से पढ़ा है। होप यू आर अंडरस्टूड दिस डायग्राम। ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो अब अभी हम बात कर लेंगे इसके बाद भी, कोई दिक्कत नहीं है। So what I have already told you, all these things is written here. Let's say repeat it. A shaft of radius r, length l, fix one end, and another end we are applying the twisting moment other end, and say a clockwise twisting t is applied at a side पे, and a resisting moment capital same amount का counter clockwise double in other end। ये चीज मैं बोल चुका हूँ। Since angle phi is an extremely small angle, then this is equal to what? This is called a shear angle. इसी को shear angle, और which is shear angle, and that shear angle is known as shear strain। वो अभी मैं explain कर चुका हूँ आपको। And the theta is called angle of twist। कौन सा होता है angle of twist? ये वाला जो क्रॉस सेक्शन में होता है, that is called angle of twist। ठीक है। So theta is called angle of twist at any radius r, जो हमने बीच में लिया हुआ है, बीच में at any radius r, शाफ्ट BB डैश इज इक्वल टू आर थीटा। कहाँ से आया? आर इज इक्वल टू रेडियस इनटू इंक्लूडेड एंगल बाय द दैट आर। वो सिंपल बचपन वाला फार्मूला वो, तो BB डैश इज इक्वल टू आर थीटा। And shear strain at radius r phi r, you can say BB dash upon capital L, where L is the length of the shaft। अभी मैंने explain किया आपको, और BB dash की जगह पे आप लिख सकते हो r theta। So now the relation become r theta by L। Then shear strain phi proportional to the radius। So आप सिमिलरली आप लिख सकते हो फॉर द आउटर ए डैश के लिए, तो जैसे यहाँ बी बी डैश के लिए हुआ था आर थीटा, सिमिलरली ए डैश बिकम कैपिटल आर थीटा। एंड आप सिमिलरली लिख सकते हो फाई the shear strain at the outer filament, outer surface, that is a dash upon L and r theta by L। This is a new relation। And we are going to be take the maximum strain phi is equal to tau upon g। ये कहाँ से आया? फॉर्मूला से, पहले ही पता था। शेयर स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? शेयर स्ट्रेस अपॉन मॉडुलस ऑफ rigidity, where tau is the maximum shear stress at the radius r। So आपको ये देखिए रिलेशन मिल गया यहाँ से, ये न्यू वाला। अब देखिए आगे चलते हैं। So आइए, so we know that at the radius r, shear strain is equal to shear stress at the radius r upon g is the shear modulus of that material। वो वहां से मिल गया। देन शेयर स्ट्रेन इज इक्वल टू फाई आर आर थीटा बाई एल, ये अभी निकाला था, फाई आर आर थीटा बाई एल। ये देखो फाई आर इज इक्वल टू आर थीटा बाई एल, यहाँ इक्वेशन नंबर 1 से लिया, ये लिया। अब हमको पता इस एंगल पे, इस शेयर स्ट्रेन पे, इस शेयर स्ट्रेन पे शेयर स्ट्रेस हमको पता है टाउ, और मटेरियल का जी पता है। ये देखो यहाँ से उठा लिया इसको, सो इसको रीअरेंज किया तो जी इधर चला गया, तो टाउ आर अपॉन आर जी थीटा बाई एल हो गया। सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन 2 और 3, ये देखो टू इक्वेशन नंबर 2 और 3 से हम जब इसको करेंगे, सो नाउ इट्स बिकम टाउ अपॉन आर जी थीटा बाई एल। इन दोनों को आपस में क्लब कर दो, क्योंकि ये दोनों कॉमन है, जी थीटा बाई एल। तो न्यू रिलेशन बिकम टाउ आर अपॉन टाउ आर अपॉन स्मॉल आर इक्वल टू जी थीटा बाई एल। ये इक्वेशन एक इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 4। तो पहला पार्ट आपको मिल गया टाउ आर अपॉन जी थीटा बाई एल।
नाउ द सेकंड पार्ट ऑफ दैट, ये यहाँ पर आइए। अब वी आर कंसीडर, हमने क्या किया, हमने ये कंसीडर किया इसका क्रॉस सेक्शन। अब समझो यहाँ पर हमको क्या निकालना है, ट्विस्टिंग मोमेंट कैपिटल टी, मतलब यहाँ आउटर सरफेस में वो तभी निकलेगा जब हमको आपको फोर्स मिल जाएगा। समझ में आया? तो देखो अब कैसे निकलेंगे। सबसे पहले हमने क्रॉस सेक्शन लिया, उस क्रॉस सेक्शन में एक एलिमेंट्री स्ट्रिप ली और उस एलिमेंट्री स्ट्रिप की सेंटर से डिस्टेंस आर ले लिया और उसकी थिकनेस डी आर, ये एलिमेंट्री स्ट्रिप है। और इसकी रेडियस, शाफ्ट की रेडियस आर पहले से ही हमारे पास, वी ऑल हैविंग दैट। सो वन थिंग is not right here, इसको it must be here tau r in inner surface, tau r। चलिए, सो अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है। तो कंसीडर एलिमेंट्री एरिया एट रेडियस आर अ थिकनेस डी आर। जब ये मिल गया मेरे को ये, तो इसका हम एरिया निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? इस सरकमफेरेंस 2 पाई आर इनटू मल्टीप्लाई बाय दिस थिकनेस डी आर, तो बिकम द एरिया ऑफ दिस एलिमेंट्री एरिया। इसका एरिया मिल गया। और इस एलिमेंट्री एरिया पे हमको पता है कि शेयर स्ट्रेस जो लग रहा है वो टाउ आर है, टाउ आर। देन एंड टाउ इज द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस। देखो टाउ यहाँ लग रहा है, यहाँ नीचे देखो जरा, टाउ यहाँ मैक्सिमम आर रेडियस पे निकल रहा है, टाउ आर यहाँ पर स्मॉल आर रेडियस पे निकल एक्ट कर रहा है। समझ में आया? सो देयर इज ए प्रोपोर्शनलिटी, द टाउ टाउ प्रोपोर्शनल टू कैपिटल आर एंड टाउ आर इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। तो हम आप यहाँ से लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनलिटी हटा के हम क्या लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनल है तो हम लिख सकते हैं कि टाउ आर इक्वल टू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इनटू टाउ। ये प्रोपोर्शनल उससे आया। तो स्मॉल टाउ आर को हम इन टर्म ऑफ टाउ के रूप में हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमारे पास जब टाउ आर मिल गया तो हम निकाल सकते हैं शेयर फोर्स ऑन स्मॉल एरिया। इस स्मॉल एरिया में हाउ मच शेयर फोर्स इज एक्टिंग कैसे निकाल सकते हैं? क्योंकि तुम्हारे पास टाउ आर है, जब तुम्हारे पास शेयर स्ट्रेस है, एलिमेंट्री एरिया है, तो फोर्स निकालने में क्या बचा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आपस में। तो देन द शेयर फोर्स इज इक्वल टू 2 पाई आर डी आर इंटू टाउ आर। अब इस टाउ आर की वैल्यू यहाँ से रख दो। सो इसकी वैल्यू यहाँ से उठा के रखी। सो दिस इज कॉल्ड द, अब देखो जरा यहाँ से ये निकला तो टाउ आर आर, तो ये मिल गया टाउ आर 2 पाई आर स्क्वायर डी डी आर। ये बन गया शेयर फोर्स एक्टिंग ऑन दिस लिंक इन दिस रिंग। इस छोटे वाले रिंग पे शेयर फोर्स लग रहा है। अब आपके पास शेयर फोर्स ऑन रिंग है। अब जब फोर्स मिल गया और फोर्स और सेंटर के अबाउट टॉर्क निकालना है और सेंटर से उसकी डिस्टेंस आपको आर पता है, आर को फोर्स में मल्टीप्लाई कर दो, ट्विस्टिंग मोमेंट ऑन द एलिमेंट्री रिंग निकल जाएगा। सो वही करना है आगे। सो नाउ द ट्विस्टिंग मोमेंट डेल टी अबाउट द सेंटर ऑफ द शाफ्ट, डेल टी इज इक्वल टू डेल एफ इंटू आर। आर से मल्टीप्लाई कर दिया रेडियस ऑफ दैट एलिमेंट्री रिंग, आर तो ये क्यूब हो जाएगा, पिछला वाला रिलेशन यहाँ पर क्यूब हो जाएगा, रिलेशन वही है। देन द ट्विस्टिंग मोमेंट किसमें, टोटल ट्विस्टिंग मोमेंट ऑन द क्रॉस सेक्शन। तो वो ये स्मॉल से कैपिटल हो जाएगा, उसको इंटीग्रेट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू कहाँ से, सेंटर ऑफ द शाफ्ट टू द आउटर रेडियस, एलिमेंट कर दीजिए। ये वैल्यू यहाँ रख दीजिए, उसको इंटीग्रेट कर दीजिए। जैसे आपने इंटीग्रेट किया यू गॉट दिस रिलेशन टाउ आर अपॉन पाई आर, आर की पावर 4, आर की पावर 4। ठीक है, ये वाला यहाँ पर इट मस्ट बी क्यू। ठीक है, सो आर ये आपका मिल जाएगा आर की पावर 4। और ये जो पाई बाई 2 आर की पावर 4 है ये कहलाता है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको जे से रिप्रेजेंट करते हैं। सो हम अब इसको रिप्लेस कर देंगे तो ये बिकम टाउ अपॉन आर into Z. J is called polar moment of inertia. This is the formula for that, and therefore T upon J tau by R इक्वेशन ये मिल गई। अब देखो अभी आपको इक्वेशन नंबर 4 जो थी वहाँ पर
था आपका टाउ आर इक्वल टू जी थीटा बाई एल। अब जब वो मिल गया, इन दोनों को सबको इक्वेट कर दो आपस में, आपको मिल गया ये वाला टाउ आर। ये देखो ये सब बराबर थे, इनको सबको एक साथ रख दो उधर ले जाके यहाँ, तो ये आपको नई इक्वेशन मिल जाएगी, दैट इज टी जे अपॉन टाउ आर जी थीटा बाई एल। ये आपको एक नई इक्वेशन, यही है इक्वेशन ऑफ टॉर्सन। तो टॉर्सन की जो इक्वेशन है ये आपको याद रखनी पड़ेगी, और आप थोड़ा सा गौर से इसको ध्यान से देखेंगे तो इट इज लुक लाइक द फ्लेक्सुरल बेंडिंग इक्वेशन। जहाँ वहाँ फ्लेक्सुरल बेंडिंग इक्वेशन में बेंड, यहाँ ये ट्विस्टिंग मूवमेंट है तो वहाँ बेंडिंग मूवमेंट था एम, ये यहाँ पर पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, वहाँ आई था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। वहाँ था क्या था, यहाँ पर बेंडिंग स्ट्रेस, यहाँ पर शेयर स्ट्रेस है, वहाँ था वाई, और यहाँ है आर रेडियस ऑफ द शाफ्ट, वहाँ था फिलामेंट की डिस्टेंस, एंड यहाँ था ई बाई आर। सो ई बाई आर की जगह यहाँ पर जी थीटा बाई आर, तो उसके सिमिलर ही है, आप उसको ऐसे याद कर सकते हो, दोनों एक जैसे ही दिखने में है। अब चलिए अब एक चीज और बताना चाहूंगा मैं, व्हाट इज द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। माय डियर स्टूडेंट, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ये बोलती है कि अगर आपको एक्स एक्स एक्सिस और वाई वाई एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता तो आप तीसरे वाली में भी निकाल सकते हो। ये हो जाएगा, दोनों को आपस में पकड़ के जोड़ दो, आई एक्स एक्स और आई वाई वाई को जोड़ दो तो जेड जेड में आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। अब आपको किसी भी सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला मैंने शुरू में ही बताया था, पाई अपॉन 64 डी की पावर 4 प्लस पाई अपॉन 64 डी की पावर 4, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स और वाई वाई सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के लिए दोनों बराबर ही होगा भाई, क्योंकि गोल है वो, डायमीटर डी है। अब आप क्या करो, इसको पकड़ के जोड़ो, जोड़ो जरा, ये हो जाएगा पाई अपॉन 32 डी की पावर 4। क्लियर हो गया। तो ये कहलाता है, इसी जेड जेड को, इसी को बोलते हैं पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो किसी किसी बुक में इसको आईपी से डिनोट करते हैं, किसी किसी बुक में इसको जे से डिनोट करते हैं, तो कुछ भी, दोनों एक ही चीज़ है। तो अब ये हो जाएगा बेटा पाई अपॉन 32, अभी अपने क्वेश्चन में डी नहीं था, आर था, तो तुम क्या करो, इसको क्या करो 2r का स्क्वायर पावर 4 कर दो कि, तो यहाँ से 16 आ जाएगा, 2 की पावर 4 से 16 बन जाएगा, तो 16 से ये, तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 r की पावर 4। यही है जे, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन टर्म ऑफ रेडियस। सो दिस इज अबाउट द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कहाँ से आया, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से, ठीक है। ये ऐसा उसका जन्म हुआ। अब आपको याद रहना चाहिए, याद ऐसे रख लो कि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है पाई बाई 64 डी की पावर 4, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पाई बाई 32 डी की पावर 4, उसका आधा, दोनों जो जुड़ते हैं इसलिए उसका उसका पाई 64 की जगह 32 लिख सकते हैं, ठीक है, लिखते हैं। सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर।